Good evening, friends. I'm Swati Soni. Hello, Jyoti Bhabi. I can see you. How are you? I Hello, am good. I sir. am good. Uh-huh. Yes, Swati. So, How are well, you? I'm fine, sir. So, welcome to this platform. We are Innoville Cosmo Club. This is a social club, Hmm. and 326 Innoville District, Raipur, is making marking this February as an Child Trafficking Awareness Month. So we thought, since you are into so many things, to discuss about this thing and get some awareness from you. All my dear friends are Okay. live who are following us. First, I welcome you, sir, and I would like to tell my friends about you. Dr. Jawahar Suri Shetty is an educationist and psychologist. He is a man with many feathers in his cap. He's a TD speaker, advisor to Government of India and to the Government of US. He is a startup mentor. He's a smart city expert, and has been rated as top 24 advisors from the paper Indian Express. And you have worked for My Beti. This is a social cause. So you have a lot of idea about, what is happening in the social work in the scenario. So we thought of discussing this topic with you. So, sir, now Okay. I would like to start with you first. According to you, what exactly is child trafficking? Okay. So, what I think matters less, but UNICEF has given a very comprehensive definition of child trafficking, which is anything that involves recruitment, transportation, transfer, kidnapping, or receiving a child for the purpose of slavery, forced labor, or exploitation. This is child trafficking. What do you think the scenario is in India related to this? Like it's more here or less, or what? How is it doing here? See, I think 1.2 million across the world happens every year, child trafficking. In India, we lose around 8 children every minute. Yeah, So it's that a is huge the figures. trafficking hub, India, and more so because Yeah. Nepal and Bangladesh, a lot of children are trafficked from there, brought to India, and then taken to the Gulf countries. So it's also not just trafficking that happens in India; it also is a hub for trafficking for other countries. ओके सर, जैसे किसी ना किसी रूप में हम भी इसमें जैसे मैंने देखा कि घर पे हमको जरूरत होती है सर्वेंट्स की, कुक्स की, हाँ, हेल्पर्स की, बच्चों को देखने के लिए। तो इन अ हाँ, वे हम लेडीज या घर बिल्कुल, के अननोइंगली अननोइंगली हम लोग हाँ, भी इस गलत चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हम कैसे हम्म। समझ पाएंगे कि हमें इससे दूर रहना है? कुछ हमें गाइडलाइंस दीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे कारण होते हैं इसमें। यानी एक तो ये जो आप कह रही हैं कि डोमेस्टिक लेबर की जरूरत होती है, तो यस। आई आई डोंट नो, मेरे लेकिन न्यूज़पेपर्स में था कि एक आईएफएस फॉरेन सर्विस ऑफिसर के घर में मार पिटाई का एक विषय आया था, तो नेशनल न्यूज़ बन हम्म। गया था। वो बच्चा था एक, एंड इट वाज इन हम्म। यूके, उनको सस्पेंड करना पड़ा। हाँ, ऐसे हम्म। बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बच्चों में जो लेबर के रूप में घरों में काम करते हैं, ये होता है। लेकिन वो हम्म। बहुत ही छोटा प्रतिशत है, क्योंकि इसके अलावा देर आर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हैपेंस। यानी हम्म। स्पेशली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों हम्म। से, आंध्र प्रदेश, इन जगहों से छोटी लड़कियों को, 15 to 18 की उम्र की लड़कियों को, दे आर टेकन टू ब्रॉथल्स एंड सोल्ड देयर। हाँ, तो दिस हम्म। फॉर्म्स अराउंड 13-14% ऑफ द सेक्स ट्रेड इन द बिगर सिटीज। तो एक बहुत बड़ा, देर आर पीपल वर्किंग देयर, बट इट्स ए ह्यूज नेक्सस बिटवीन ब्रोकर्स एंड दीज हम्म। पीपल हु रन दिस ब्रॉथल्स। इसके अलावा फोर्स्ड मैरिज होता है। यानी मुझे पैसा चाहिए, परिवार में पैसा नहीं है, तो हम्म। मैं शादी कर देता हूँ, कुछ 1-2 लाख रुपए वो दे के चला जाता है, एंड दिस हैपेंस हम्म। मोर इन द गल्फ।
हाँ, तो यस। पैसा हर साल का 1 लाख रुपए ऐसा आता है, और वो लड़की को ले जाते हम्म। हैं, और जैसे ऐसी 100 लड़कियां होंगी उनके पास। हाँ, तो ये ओके। फोर्स्ड मैरिज इज अनदर। और एक बात है, बेनिफिट फ्रॉड उसको बोलते हैं। बेनिफिट फ्रॉड में क्या होता है कि अगर मैंने चोरी की, हाँ, तो मेरी तरफ हम्म कोई सहानुभूति नहीं होगी, लेकिन अगर एक बच्चे ने चोरी की तो उसकी तरफ हम्म सहानुभूति होती है। तो बच्चों से चोरी करवाते हैं, बच्चों से सिग्नल्स पे भीख मंगवाते हैं। हाँ, इस तरह की यस। चीजें बच्चों से करवाते हैं, तो उसको बेनिफिट फ्रॉड बोलते हैं। यानी करवा मैं रहा हूँ लेकिन बच्चों से करवा रहा हूँ। हाँ, तो देन देर हम्म। इज ऑल्सो आर्म्ड स्ट्रगल। जैसे मान लीजिए आप नक्सली इलाकों में चले जाइए, या फिर अफ्रीका में हम्म चला जाइए जहाँ पे शांति नहीं है, वहां पे बच्चों को फ्रंट लाइन में रखा जाता है ताकि आर्मी या पुलिस शूट ना करे हमको। हाँ, बच्चों और ओके। महिलाओं को रखा जाता है, तो वो रिक्रूट करते हम्म हैं। हाँ, तो वो इवन हम्म जिहादीज डू दिस, कि यंग बच्चों हम्म को रिक्रूट करते हैं और उनको फ्रंट लाइन में रखते हैं ताकि उनको शूट ना करे और हम बचे रह जाए। हम्म तो दीज आर हम्म वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस व्हाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग हैपेंस। हाँ, लेकिन हम्म जैसे इन द केस ऑफ जिहादीज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसलिए होता है क्योंकि उनको माँ बाप बचपन से, या जिहादी कैंप्स में बचपन से उनको बोल दिया जाता है कि तुमको जान देनी पड़ेगी, जान देनी पड़ेगी, और ऐसा घुसा दिया जाता है हम्म कि जो सामने कर रहा है वो हम्म गलत है, इसलिए अवेयरनेस वहां होती नहीं है। हाँ, लेकिन हम्म गाँवों में जैसे अभी उड़ीसा में कोई माइती कर गए हैं, और बंगाल में कोई माइती कर गए हैं। ही वॉज अर्लियर अ हम्म ब्रोकर who used to हम्म traffic children to from Bangladesh to India and India to Bangladesh. ओके। उसने अभी बीबीसी को बताया हम्म कि मैं यानी अब सुधर गया हूँ। हाँ, लेकिन हम्म उसने इतने राज बताए कि क्या होता है। और नाउ हम्म ही हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द विलेजेस कि ट्रैफिकिंग कैसे होती, क्योंकि वो इनसाइडर व्यू है, वो वही काम हम्म किया हुआ है, तो वो बताना हम्म बेहतर। तो ऐसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ काम कर रही हैं। अवेयरनेस इज द ओनली वे हम्म अबाउट द लॉ एंड लीगल इम्प्लीकेशंस कि हम उसको हम्म। रोक सकते हैं। अच्छा सर, हम बीइंग लोकल, और ये हमारा रायपुर डिस्ट्रिक्ट का ही प्रोग्राम है, तो हमें ये बताइए कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्टैंड करता है इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, और स्पेशली रायपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या सीन है? नहीं, रायपुर इज ए बेटर डिस्ट्रिक्ट एज फार एज चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज कंसर्न। हाँ, ओके। जो प्रॉब्लम आती है वो सरगुजा अंबिकापुर उस तरफ आती है ज्यादातर, हम्म क्योंकि वहां से झारखंड ले जाते हैं बच्चों को। हाँ, हम्म और यानी उस बेल्ट में सबसे ज्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। कुछ एक गांव ऐसे हैं सरगुजा में जो कि यानी पनपते ही इसलिए एक एक परिवार से एक एक चाइल्ड को भेज दिया जाता है, वेदर इट इज फॉर ओके। एनी एनी रीजन, लेकिन चाइल्ड जाता है वहां से। तो वो गांव हम्म गांव पनपते इसलिए हैं। हम्म। बट छत्तीसगढ़ इज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बहुत मिसिंग बच्चे यहाँ से होते हैं। कंपैरिजन अगर हम करें बाकी स्टेट से, तो छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से थोड़ा रेशियो कम पाया कम जाएगा है, ट्वेल्व। कम है। यस, बिकॉज ऑफ मे बी स्मॉलर स्टेट और वट एवर। नहीं, इट इज नॉट दैट। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। छत्तीसगढ़ में हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बहुत सीरियसली लेते नहीं है। हाँ, तो हमारे ओके पास जैसे 174 बच्चे मिसिंग हो जाते हैं एक महीने में। हाँ, तो ओके। अगर 174 माइनर्स मिसिंग हो जाते हैं और हम्म उसमें से सिर्फ आधे ही मिलते हैं, तो बाकी हम्म आधे कहाँ जाते हैं। हम्म। हाँ, उसको अगर आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लें तो छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो इन टू सीरियस ट्रबल। हाँ, बट फिर हम्म। भी बनस्पत मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके बनस्पत थोड़ा सा बेहतर है। ओके। सर, चूंकि आप काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा इस बात पे रोशनी डालेंगे कि गवर्नमेंट इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या कर रही है, सीरियस स्टेप्स, और क्या उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? दो चीजें हैं इसमें, दो लेवल पे होती हैं। जैसे इंडिया में 100% चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है, उसमें से 10% इंटरनेशनल है। जैसे गल्फ कंट्रीज ले जाया जाता है लड़कियों को। हम्म हाँ, हम्म और डोमेस्टिक लेबर के लिए यूके, कनाडा वगैरह ले जाते हैं। हाँ, तो वो हम्म। इंटरनेशनल इज 10% ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हाँ, लेकिन ओके। 90% जो इंटरस्टेट होता है, डोमेस्टिक होता है, हम्म उसके लिए हम्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 23 में जब लिखा है कि वेरी हम्म क्लियरली चाइल्ड ट्रैफिकिंग लिखा है उसमें। हाँ, तो हम्म यानी एक प्रोविजन बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि दंडित है, ये अपराध दंडित है।
इसके अलावा जो पहले सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट करके सीता होता था एक एक्ट, हाँ, जो ओके। लड़कियों को सेक्स ट्रेड में डाल देते हैं, उसके लिए, उससे बचाने के लिए सीता होता था। उसको सीता में से एस हटा के आईटीए बना दिया गया है अभी, इमोरल ट्रैफिक एक्ट। और उसमें चाइल्ड ओके। ट्रैफिक इज ए बिग प्रोविजन, यानी आपको 10 साल की ओके। सजा हो सकती है, वो बड़ी सजा है उसमें। हाँ, लेकिन ओके। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर माँ बाप बच्चों को दे रहे हैं, हाँ, जब भले ही पैसे की वजह से या गरीबी की वजह से, जो भी वजह से हो, तो वो हम्म। पुलिस तक कंप्लेंट पहुंचती ही नहीं है। हाँ, दूसरी चीज है, जो 10% इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग होती है, उसके लिए भी हम्म। दो प्रोविजन बने हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने बनाए। यूएन हैज मेड आर्टिकल 19 एंड 32 to 36, जो ओके। यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके स्पेसिफिकली बना है। और उसमें हम्म। सारे कंट्रीज को बोला गया है कि इसके अंडर अगर कोई होता है तो हम्म। आपको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ओके। रिपोर्टिंग ऑफ केसेस इज लेस, ये प्रॉब्लम ओके। है। ओके। सर, जैसे हम एक सोशल क्लब है, हमारे जैसे कई क्लब्स हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस चीज को रोकने के लिए हमारे जैसे सोशल क्लब्स, लेडीज क्लब, ये सब क्या स्टेप्स, आई मीन रियल कॉन्क्रीट स्टेप्स टू गेट रिजल्ट, हम क्या ले सकते हैं? देखिए, इसको ना अगर रूट कॉज में जाएंगे कि क्यों होता है, हाँ, तो भले ही लगे कि आज हम जो कर रहे हैं उसका असर ना हो, लेकिन लंबे समय में अगर आपको असर देखना है तो यू शुड वर्क हम्म। ऑन समथिंग। जो मेजर कॉजेस हैं इसके, पहला कॉज ये है कि गरीबी अगर हम कैसे हटा सकते हैं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मेजर वजह ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज गरीबी। कोई भी माँ बाप अपने पॉवर्टी। बच्चे को, हाँ, यस, पॉवर्टी। सो एनी हम्म। पेरेंट, इफ ही और शी गिव्स हर चिल्ड्रन और सेल्स हर चिल्ड्रन, इससे हम्म। कोई बड़ी, यानी मैं पैदा किस लिए किया हूँ? बेचने के लिए। हाँ, यस। तो अगर कोई दे रहा है, इसका मतलब कि वो बहुत ही तकलीफ में है, इसलिए दे देता है। हम्म। तो पहला यस। है कि सोशल क्लब्स अगर बट टीच देम हाउ टू फिश, हाँ, अगर रोजगार पैदा हम्म। कर सके उन लोगों के लिए, ये बेस्ट होगा। दूसरा है कि हम्म। लैक ऑफ एजुकेशन, कि हम अगर हम्म। बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे घर में हम्म। बैठे हैं, हाँ, तो हम्म। उनको लगता है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, माँ बाप को लगता है ये बच्चों को हम इस धंधे में डाल देते हैं। हाँ, यह भेज हम्म। देते हैं कि भाई तू चाय चाय बना। हाँ, चाइल्ड हम्म। लेबर इज ऑल्सो हम्म। ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हम्म। यस। तो 14 साल के बच्चों का प्रोविजन जो है बनाया गया है कि चाइल्ड लेबर है, तो वो क्या हम्म। करते हैं, जैसे शहर भेज दिया, और शहर में किसी सेठ ने रख लिया दुकान में या कहीं पे, चाय की हम्म। दुकान में अगर काम करता है, तो क्योंकि बहुत पब्लिक आती है, इसलिए हमको हम्म। दिखता है कि ये चाइल्ड लेबर है, या होटल में। लेकिन हम्म। अगर फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, हाँ, तो हम्म। कोई आता नहीं है वहां पे, तो ऐसे चाइल्ड लेबर बहुत दिखते हैं। और ये, हम्म। अगर ये एरियाज जो हैं, अगर उनको हम्म। पढ़ाया जाए मुफ्त में, माँ बाप के पास पैसे नहीं रहते पढ़ाने के लिए, अगर हम हम्म। पढ़ा सके उनको और हम्म। रोजगार लायक बना सके, तो ट्रैफिकिंग कम होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज है माइग्रेशन। जैसे अभी पैंडेमिक हो गया, तो हम्म। जितने बिहारी बिहारी थे और यूपी के लोग थे जो बंबई में काम करते थे या दिल्ली में काम करते थे, वो वापस आ गए। हाँ, वो हम्म। क्यों काम करते थे? क्योंकि उनके 4 भाइयों के बीच में 1 एकड़ जमीन है। हाँ, हम्म। और चारों भाइयों के लिए 1 एकड़ काफी नहीं होता था, इसलिए 3 लोग चले जाते थे, और हम्म। 4 बीवियां और एक भाई गांव में रह जाते थे। वो भाई गांव का जमीन देखता था। हाँ, ओके। अब वहां से ये लोग पैसा भेजते थे बंबई से। पैंडेमिक में क्या हो गया, चारों भाई वापस आ गए और हम्म। यही घर पे ही है अभी, और उनको पत्नियां बोल रही है मत जाओ बंबई, वहां संक्रमण ज्यादा है। तो एक हम्म। एकड़ में चारों लोग खा रहे हैं, तो गरीबी हम्म। बढ़ी। हाँ, ओके। इस वजह से क्या होता है कि इस मोमेंट में बच्चे हमारे ऊपर बोझ लगते हैं। हाँ, तो हम्म। उस समय चाइल्ड ट्रैफिकिंग ज्यादा होता है। तो पैंडेमिक हैज इंक्रीज द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, हाँ, ड्यू टू हम्म। दिस रीजन। एक और उदाहरण है जो अफ्रीका में है। हम्म। अफ्रीका में जब भूखमरी होती है, तो हम्म। एडल्ट एडल्ट के सर्वाइवल के लिए वो बच्चों को खा जाते हैं या बेच देते हैं किसी और को खाने के लिए। यानी हम्म। इस हद तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग वहां पे होती है। अफ्रीका इज हम्म। द वर्स्ट वर्स्ट ओके। चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ओके। हाँ, इट्स द वर्स्ट। और हम्म। क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम्म। भूखमरी होती है तो वो लोग चाइल्ड चिल्ड्रन को खा भी जाते हैं।
हाँ, हालांकि ओके। ये 1958 में इसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चली थी। हाँ, लेकिन अब थोड़ा बेहतर है अफ्रीका, क्योंकि यूएन एड हम्म। वगैरह मिलता है उसको, लेकिन ये होता था और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है ये चीजें। ओके। आपने जो एग्जांपल्स दिए उससे काफी कुछ पिक्चर क्लियर हुई, और मतलब इसका एक रूट कॉज हमें समझ में आया। बिल्कुल। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड है चाइल्ड यस, ट्रैफिकिंग, इकोनॉमी, एजुकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन एंड इकोनॉमी। तो यस, सर, यस। जैसे आपने अपनी एक बुक लिखी, थिंक फॉर इंडिया, उसमें आपको बोला गया है कि आप एक थिंक प्रोफेसर है। तो हम्म। आप अपनी सोच के हिसाब से हमें बताइए कि एक डिफरेंस लाना है हमें सोसाइटी में एकजुट होकर, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट वे और जिसमें बातें कम हो और एक्शन ज्यादा हो, वैसे हम सारी महिला क्लब मिलके मतलब कोई कोई प्लान ऑफ एक्शन हमें दीजिए। ओके, तो दो चीजें हैं। अगर आप रूट कॉज पे हिट करना चाह रहे हैं और शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं कि जल्दी यस, इफेक्ट आए, यस, ऐसा चाह रहे हैं दिखे आप। रिजल्ट, दिखे हाँ, हमें। रिजल्ट्स तुरंत दिखे, तो उसमें ना मैंने एक चीज देखा है। जैसे ज्यादातर इफ वी टेक छत्तीसगढ़, क्योंकि आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन छत्तीसगढ़ है, तो ज्यादातर यहाँ फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर है। हाँ, यस। तो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर अगर है, और ज्यादातर सुइसाइड्स फार्मर्स के या लोन्स फार्मर चुका नहीं पाते, यानी गरीबी ज्यादातर उस वर्ग में दिखती है, ग्रामीण इलाकों में। तो उसमें ये कर सकते हैं दो चीजें। जैसे हम लोग अभी स्टार्टअप इंडिया के तहत रूरल स्टार्टअप्स करके हमने स्टार्ट किया था। उसमें क्या होता है कि अभी तक स्टार्टअप जो है वो शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा चलता था, स्टार्टअप रूरल में जानते ही नहीं थे। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि गांव में सोच अच्छी है, और सोच अच्छी का मतलब है जब मजबूरी होती है मुझे, तो मैं बेहतर सोचता हूँ। हाँ, मेरे एसी कमरे में बैठ के अगर आप सोचने बोलोगे तो शायद नहीं सोच पाऊंगा। हाँ, यस। तो इसलिए मजबूरी में वो बेहतर सोचता है, तो उसको अगर मैं सपोर्ट दूं कि भाई तेरे को आइडिया है क्या, हम सब सपोर्ट करने बैठे हैं, तो एक एक क्लब अगर एक एक आइडिया ग्रामीण इलाकों में सपोर्ट करे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे जम्मू जम्मू कश्मीर में बॉर्डर्स पे बमबारी होती थी। हाँ, तो बमबारी के टाइम में स्कूल्स बंद हो गए। हाँ, ओके। और स्कूल स्कूल के छतों में छेद हो जाता था। हाँ, तो ओह। उस समय जम्मू के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और घर में बैठे रहते थे। अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, सालों साल जम्मू कश्मीर ने ये स्थिति देखी है। ओह। हाँ, हाँ, तो उस समय जब हम लोग सोचते थे कि क्या करना चाहिए ऐसा, तो एक आइडिया आया जिससे कि रोजगार भी पैदा हो सके, बच्चों को पढ़ाई भी मिल जाए। इस तरह का एक आइडिया था जिसका नाम हम लोगों ने रखा था ज्ञानदान। हाँ, तो ज्ञान उसमें दान। दान, हाँ, ज्ञानदान। ओके। उसमें क्या करते थे हम कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बसेस दी, वीडियोकॉन ने एक वीसीडी प्लेयर और टीवी दी। हाँ, तो हम बसेस को अल्टरनेटिव स्कूल्स बना देते थे। हाँ, ओह, दैट्स रियली ग्रेट। और हर जिले में वहीं के पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे होते थे, वही ड्राइवरी कंडक्टरी करते थे, और वो लोग पढ़े लिखे होते थे, तो हम उनको 1200 रुपए देते थे महीने का। तो रोजगार पैदा हुआ वहां पे, रोजगार अच्छा। पैदा होने लग गया। और वही बच्चे एक जिले में जाते थे, बस में बच्चे आते थे, वो वीडियो और सब दिखा के यही दो ड्राइवर कंडक्टर टीचर बन जाते थे। और ओह। वो एक जिले में 2 दिन पढ़ाते थे। हाँ, अच्छा। वो जिले के जो मुखिया होते थे या सरपंच होते थे, वो खाना खिलाते थे इन बच्चों को। हाँ, तो यानी ड्राइवर कंडक्टर को फिर 2 दिन बाद दूसरे जिले में उसी बस में जाते थे और फिर बच्चों को पढ़ाते थे। तो 2 दिन की पढ़ाई तो हम लोगों ने बच्चों को दी उस वक्त। हाँ, और जीरो से 2 दिन बेहतर होता था। हाँ, तो यानी 16 बसेस चली हैं। हाँ, 16 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम, 16 डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर। तो हमने 16 बसेस चलाई, और 16 बसेस में 32 लोगों को रोजगार दिया 1200 के हिसाब से, और सारे बच्चों को पढ़ाया जो जो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इस ओके। तरह के अगर हम प्रोग्राम बना सकें जिससे कि रोजगार पैदा हो सके, बच्चे पढ़ सके, हाँ, और उसका बर्डन जो है वो पेरेंट्स पे ना आए, तो मुझे लगता है ये एक प्लान है जो कि हमको बस्तर जिले में या ऐसे जिले जहां पे स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं या नक्सली इलाकों में चला सकते हैं लोग। हाँ, बट इसमें ये तो एक शिक्षा की बात हुई जिसका तुरंत असर दिखता है। दूसरा है
दूसरा है कि जैसे इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, हाँ, स्किलिंग के बारे में या वोकेशन के बारे में बात करी है उन्होंने, कि बच्चों को छठवीं से अगर छोड़, क्योंकि 7वीं से 9वीं के बीच में ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं जो गांव में रहते यस हैं। क्यों? जी। उनको लगता है लड़कियों को लगता है कि स्कूल जाना हमारे लिए बेकार है। हाँ, और लड़कों को लगता है कि स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो हमारे खेती के काम नहीं आएगा। तो ओके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा है कि लोकल स्किल डेवलप करिए, कि अगर कोई बच्चा खेती करता है और आप उसको पढ़ा रहे हो फिजिक्स, तो उसको लगेगा बेकार। तो यस। लोकल एक किसान को बुलाइए और वो किसान को बोलिए पढ़ाने के लिए कि खेती कैसे बेहतर हो सकती है करके। तो जैसे यहाँ वीएनआर सीड्स है, वीएनआर सीड्स के जो साइंटिफिक ढंग से वो लोग बनाते हैं या खेती करते हैं, उनको मैं एक स्कूल में ले जाके बताऊं कि भाई तुम्हारा यील्ड इस तरह से बेहतर हो सकता है, हाँ, खेती में। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो बच्चा, उसको उठा के ले आते हैं और कंप्यूटर सिखा देते हैं उसको। हाँ, और हाँ वो बच्चा सोचता है ये कंप्यूटर का मेरे को काम में नहीं आने वाला मेरे खेती में। हाँ, हाँ तो हाँ। इस बार इसको एड्रेस किया गया है और लोकल स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो मतलब मैं जो आप एजुकेशन को कस्टमाइज करेंगे आप एज यस पर द यस यस इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड जनरेट करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी, यस यस, बिल्कुल सही। यस। तो मैं जो बस वाला आइडिया बताया, अगर स्कूल सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में चल भी रहे हैं तो बस में आप स्किलिंग कर सकते हैं कम से कम। राइट। हाँ, तो मतलब हम एक एम्प्लॉयबिलिटी, हाँ, स्किल कुछ एम्प्लॉयमेंट स्किल ट्रेनिंग दे सकते हाँ हैं। और दे सकते हैं। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम हमारे जो स्कूल रिलेटेड जिसको अभी अवार्ड मिला है। पढ़ाई तू हर द्वार, हाँ मैं बोल नहीं पा पढ़ाई रही तू, हूँ सर। तो हाँ, वो प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है और क्या वो हमारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कनेक्टेड है? नहीं, नहीं है। और वो प्रोग्राम ठीक है, अवार्ड मिला है, सब कुछ है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम है कि डिजिटल स्कूल चलाने के लिए बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। यस। हाँ, तो हम आंकड़े दिखा सकते हैं कि 18 लाख बच्चे उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑन ए डेली बेसिस जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ 8,000 बच्चे हैं। हाँ, सिर्फ उसमें। हाँ, तो आंकड़े अलग कहते हैं और प्रैक्टिकल अलग कहता है, लेकिन फिर भी एक एफर्ट किया गया है कि हमको बच्चों तक पहुंचना है, और वो अच्छा एफर्ट था, उसकी सराहना करनी चाहिए। उसका चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कोई लेना देना नहीं, ये वही बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्कूल में हैं। हमको अच्छा। पहुंचना होगा वो बच्चे जो स्कूल में नहीं हैं। आपका मतलब है कि हम सिर्फ एनजीओज और सोशल क्लब्स मिलकर भी ये इरेडिकेशन ऑफ कर सीटी सकते कर सकते हैं? कर हमें सकते हैं। गवर्नमेंट की या जरूरत नहीं है। नो कॉरपोरेट्स नो, की या जरूरत नहीं। सीएसआर्स की या इस तरह के किसी भी चीज की नहीं नहीं जरूरत नहीं है। नहीं हम अपने नहीं, घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारी मेंबर्स हैं फीमेल मेंबर्स, आप इनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे रिलेटेड हम थोड़े मोटिवेट हो और जोर शोर से और पूरे उल्लास के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाएं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि यू आप लोग होम मेकर भी हो, अगर करियर में भी नहीं होना, तो आप लोग का इतना ज्यादा योगदान रहता है। हाँ, कि आपके घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं नहीं बिगड़ रहे हैं, आपकी बाई के बच्चे बिगड़ रहे हैं नहीं बिगड़ रहे हैं, उनपे उनपे हम लोग का कोई रोल नहीं रहता है। हाँ, ये हाँ रोल रहता है आप ही लोगों का। हाँ, तो मुझे हाँ। जरूरत भी नहीं है कुछ बोलने की। आई कैन 100% से कि आप लोग का इम्पोर्टेंस एनी डे हम लोग से ज्यादा है। हम जाके कुछ पैसे ले आते हैं घर में, लेकिन घर चलाते आप लोग हैं और समाज चलाते आप लोग हैं। हाँ, मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। हाँ, आज मैं यस। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वुमेन्स डे है करके, लेकिन मैं जानता हूँ और मैंने देखा है अपने घरों में क्या हमारी माँ को, कि उनका योगदान कितना रहता है। आप अगर सोचें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मुझे लगता है कि अगर ये 174 लोग हैं, जिसमें से अगर 50% मिल भी जाते हैं, तो 80-85 लोग अगर गायब हो जाते हैं या वो आपके घरों में काम कर रहे हैं बच्चे, हाँ, तो हमको पहले अपने घरों की सफाई करनी चाहिए कि हमारे या आपके पड़ोसी के घर में कोई बच्चा काम कर रहा है या कार धो रहा है कोई बच्चा। हाँ, इस तरह की चीजें। लेकिन लेकिन इसमें ना एक छोटा सा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि चाइल्ड लेबर 14 ईयर्स के नीचे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पास घर में कमाने के लिए कुछ नहीं है। इस वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ता है। तो आपने एक नियम तो बना दिया कि 14 के नीचे बच्चों को काम नहीं करना है, लेकिन वो काम नहीं करेगा तो ट्रैफिकिंग होगा।
हम्म। हाँ, तो दोनों में विरोधाभास है। द लॉ इज डिफरेंट एंड द हम्म। प्रैक्टिकल पार्ट इज प्रैक्टिकल थिंग्स इज डिफरेंट। इज आर डिफरेंट। तो महिलाओं हम्म। को, अगर महिलाएं ये करें, क्योंकि लॉ हम्म। बनाने वाले ना, लॉ मेकर्स आर मोस्टली मेल। हाँ, ओके। तो लॉ में इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। महिला जिस तरह से सोचती है उस तरह हम्म। से मर्द नहीं सोच सकता, उतना इमोशनल मर्द में है भी नहीं। हाँ, तो इस वजह से क्या है, आप लोग अगर आजू बाजू देखें और लगे आपको कि मेरी हम्म। सपोर्ट की, ये बगल वाले घर में जो लड़का है जो कार धोता है, उसको अगर हम्म। मैं पढ़ा सकूं, तो दैट इज हम्म। इनफ। एक बच्चा आपके चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बच जाएगा। हम्म। हाँ, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नॉट बिग बट स्मॉल, हम्म। बट फ्रॉम आवर होम्स एंड फ्रॉम आवर हम्म। क्लब्स। हाँ, और एक हम्म। सेट ऑफ 100 बच्चों को आपके क्लब का अगर बिल्डिंग है तो वहां हम्म। बुला के पढ़ाइए। जो बच्चे यानी रोजगार में नहीं है या स्कूलों में नहीं है, उनको बुला के पढ़ाइए। इससे हम्म। ज्यादा आप कोई पुण्य नहीं कर सकते। यू कांट डू बिल्कुल। एनीथिंग बेटर देन दिस। हाँ, और ये मतलब आप ही हमें, लोग के बस की बात है। हाँ मतलब हमें शुरुआत हमारे घर से, हमारे करनी पड़ोस से चाहिए, ही करनी है और छोटी सी करनी शुरुआत चाहिए। करनी है। एक दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की कि लॉ मेकिंग में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए और उनकी सोच भी जुड़नी चाहिए। बिल्कुल ये जुड़नी भी चाहिए, बिल्कुल जुड़नी चाहिए। हाँ, इससे काफी कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, आप लोग आ, अलग सोचते हैं, आप हाँ सोचती अलग है। बहुत हाँ, गहराई इमोशनल से। सोचते हैं, हाँ सोचते हैं। हाँ, और बिल्कुल, यानी अगर प्रैक्टिकली। आप, हाँ आप घर चलाती है मान लीजिए, हाँ, और मान लीजिए आपने कहा कि आज फिल्टर बदलना है मुझे, हाँ, तो हम्म। आदमी बोल देगा कि अरे अभी तो बदला था। हाँ, हम्म। लेकिन महिला बोलती है कि हो सकता है कि पानी की खपत इस महीने क्योंकि मेहमान आए हैं तो ज्यादा हुई होगी। हाँ, या हाँ। इस तरह की सोच आदमी में नहीं आती। वो सिर्फ एक लाइन बोल देता है कि आपने ये कर दिया। हाँ, हाँ। तो हाँ। घर चलाने से लेके लोगों को चलाने तक की प्रक्रिया महिलाएं बेहतर बेहतर करती हैं, बेहतर करती हैं। तो उनका पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए इस तरह के विषयों में। आपके ये विचार सुन के हमें बहुत खुशी और हम गदगद हो गए। अरे किस लिए। सर आप आए इस प्लेटफॉर्म पर इतनी शॉर्ट नोटिस पे इनफैक्ट, और आप इतने हाई प्रोफाइल है, मैंने तो आपका प्रोफाइल आज पढ़ा, तो आपने बहुत